हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना पोलिनोमियल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पोलिनोमियल टॉपिक में आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम दो वर्ड्स समझेंगे बच्चों। कांस्टेंट एंड द वेरिएबल। ओके, नाउ कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट यानी कि अल्टीमेटली अगर हम समझे तो real values, that means the real numbers. Okay, so why we are saying it's a constant? Because suppose we take one example, real number 2. So 2 is a constant because of wherever you use the 2, so value of 2 remains unchanged. Okay, so that's why it's steady, it's fixed. So that's why it's a constant. It never change. Suppose I have 5, so it never change the value. Okay, minus 5, not changed. Root 5, not changed the value anywhere. So that means the numbers have the fixed values. That's why we are using that as a constant. Okay, and the constant, for that we are using the symbols in a general way. A, B, C, D. These are in the general form we are using the symbols. Now variables. So variable, that means it's varied. It can change the value. So that's why it's called the variables. Symbolically we are using X, Y, Z. These are the what symbols we are using for variables. So now understood bachcho, what is the constant, what is the variable? Constant, that means the numbers have the fixed values. It's never change anywhere. So that's why we are using the word constant for them. And symbolically we are noted as a B, C, D, like that. Variable, that means it can take any value. Suppose in any example we calculated the value of variable x, that is 2. In another question the same variable x, suppose we will get it 3. That means in the one example variable x taken the value 2, in another question it taken the value 3. That means it's varied, it changes the value. Okay, so x, y, z, these are the symbol we are using for variable. Okay, now अब हम समझेंगे अपना वर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो भी आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में कुछ देखा ही होगा। Now what is the algebraic expression? So it's a so simple word. जो भी हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स है उसको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ अरेंज कर रहे हैं. So whatever the different type of arrangement you can make it, that is the algebraic expression. So arrangements of constants, variables, arrangement of constants and variables with mathematical operators. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन. ओके, सो कोई भी अरेंजमेंट आप कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स विद द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ आप जो भी कर पा रहे हो, दीज ऑल आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. कुछ एग्जांपल्स बच्चों देखते हैं. जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एक सपोज मैं ले रहा हूं 3x. सो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया because here the constant 3 and the variable x, उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हुआ बच्चों? कुछ भी बीच में नहीं है, यानी प्रोडक्ट हुआ है, राइट? तो एक अरेंजमेंट हो गया कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर का. और एक एग्जांपल लेते हैं, 3x प्लस में 5 ले लो, ये भी एक हमारे पास अरेंजमेंट हुआ है. और एग्जांपल लेते हैं, इट्स अ 3 by x plus 2 ले लेते हैं.
ये भी एक अरेंजमेंट हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, इट्स अ 2x प्लस √3, वो भी एक अरेंजमेंट हो गया। और एग्जांपल्स लेते हैं, काफी अलग अलग हम अरेंजमेंट्स कर सकते हैं बच्चों। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये भी एक अरेंजमेंट हो गया। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, वो भी एक अरेंजमेंट हो गया। काफी सारे एग्जांपल्स बन पाएंगे बच्चों। देन समझ लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 3√x माइनस 2, वो भी एक एग्जांपल हो गया। काफी सारे वेरियस एग्जांपल वी कैन मेक इट अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 5, ये भी एक एग्जांपल हो गया। सो काफी सारे एग्जांपल्स हम इस तरह से फॉर्म कर पाएंगे। ओके, सो दीज ऑल आर द अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स with the mathematical operators. So these all are the algebraic expressions. Understood बच्चों? चलो अब हम समझते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। So पोलिनोमियल के लिए, पोलिनोमियल भी एक algebraic expression ही है, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन अगर आपकी algebraic expression फॉलो कर रहे हैं, then it will be a polynomial. वो कंडीशंस क्या है? So सबसे पहले तो हमें राइट एक प्रॉपर अरेंजमेंट देखना होगा algebraic एक्सप्रेशन में। सो व्हाट द थिंग दैट वी हैव टू चेक इट, वेरिएबल इज इन न्यूमरेटर। ओके, वेरिएबल कहां पे चेक करना है आपको? न्यूमरेटर में। अगर नहीं है तो आप शिफ्ट कर लीजिए टेम्पररी। ओके, चेक करने के लिए थोड़ा जरूरी पॉइंट है। एंड सेकंड थिंग, ओके, वेरिएबल पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। यानी कि सबसे पहले तो कुछ और एक एग्जांपल हम दो अलग वेरिएबल्स के साथ भी लिख लेते हैं बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट वेरिएबल्स भी पॉसिबल हो सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3xy प्लस 2x प्लस 3, ऐसे भी पॉसिबल है। ठीक है, चलो नाउ सो पोलिनोमियल के लिए बच्चों में मेनली क्या देखना होगा? तो एक अरेंजमेंट आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप चेक कर लो कि वेरिएबल आपका न्यूमरेटर में है कि नहीं है। If your variable is in denominator, so first you have to shift it. Okay, this arrangement that we have to check it first of all. Second, variable power, that is whole number. यानी कि जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर, then it will be a polynomial. Okay, so some of the algebraic expression that may be polynomial if they follows these conditions. राइट, अब जैसे यहाँ पे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन काफी सारे लिखे हुए हैं, इसमें हम दो चीजें वेरीफाई कर लेते हैं। पहले तो वेरिएबल दैट इज इन न्यूमरेटर, अगर नहीं है तो उसको हम शिफ्ट करके पहले अरेंज करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल चेक इफ द वेरिएबल पावर इज होल नंबर और नॉट। इफ वेरिएबल पावर इज होल नंबर, सो दैट मींस दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी कैन से इट्स अ पॉलिनोमियल। ओके, चलो अब वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ वेरिएबल न्यूमरेटर में ही है, बिकॉज डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 है। ओके, नाउ आप देख सकते हो वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है बच्चों? कुछ भी नहीं है तो 1। ओके, सो दैट मींस 1 इज अ होल नंबर, सो a हमारे पास पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल x पावर क्या है? नथिंग, तो 1। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल x है तो x की पावर यहाँ पे क्या होगी? 0। राइट, इसके लिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ओके, जहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या होती है? 0। ओके, वेरिएबल लिखा है आपके पास और पावर कुछ भी नहीं है तो दैट इज 1 बाय डिफॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे भी जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? होल नंबर। राइट, अगर x में ले रहा है तो उसकी पावर 0, जैसे हमने डिस्कस किया था बच्चों, तो 0 भी एक होल नंबर ही हुआ। ओके, बट हम उसको लिखते नहीं यूजुअली। अगर यहाँ पे देखेंगे तो अब वेरिएबल x है बट a कंबाइंड है, x अकेला नहीं है, वी हैव द टू टर्म्स टुगेदर। सो अगर इसको लिख रहा हूं तो ऐसे लिख पाएंगे 3x + 2 द पावर -1। ओके, और इट्स नॉट बिकम अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं हो पाएगी, राइट। अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट भी कर रहे हो तो x + 2 द पावर व्हाट? -1।
ओके, ब्रैकेट को एक्सपांड भी करने की जरूरत नहीं है आपको। चलो यहाँ पे देखेंगे तो x द पावर व्हाट 1 कांस्टेंट टर्म है, सो यहाँ पे वेरिएबल है जिनकी हर एक की पावर क्या है, होल नंबर है, सो इट्स नॉट अ पॉलीनॉमियल, इट्स अ पॉलीनॉमियल। यहाँ पे देखेंगे तो वेरिएबल y है, ओके, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है x y z समथिंग, ओके। सो यहाँ पे देखेंगे तो वेरिएबल y की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल y की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल y की पावर क्या है 0, सो दैट मींस होल नंबर है सभी के लिए, सो इट्स अगेन अ पॉलीनोमियल। यहाँ पे चेक करेंगे तो पहले तो वेरिएबल x डिनोमिनेटर में, तो इसको पहले तो मुझे न्यूमरेटर में शिफ्ट करना होगा, तो अगर मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहा हूं तो हाउ आई कैन राइट डाउन दिस, सो 3x² + 2x द पावर -1, x अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रही है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहे तो पावर की साइन ऑलवेज चेंज होगी बच्चों, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, अगर उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा -1, ओके। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो x द पावर 2 होल नंबर, x द पावर -1 होल नंबर, और कांस्टेंट टर्म में तो वेरिएबल पावर 0 दैट इज होल नंबर, तो ये पॉलीनोमियल हो गया बच्चों। यहाँ पे देखेंगे तो x द पावर 2 होल नंबर, यहाँ पे स्क्वायर रूट है बच्चों, देखो अगर मैं स्क्वायर रूट के लिए अगर पावर फॉर्म लिखना चाहूँ, व्हाट आई कैन राइट डाउन 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3, फोर्थ रूट है तो 1/4, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस 3x² + 3x द पावर 1/2 रूट x, मैं स्क्वायर रूट के सिंबल हटा के पावर क्या ले सकता हूँ 1/2 एंड द -2, तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट, यहाँ पे वेरिएबल की पावर, यहाँ पे a जो है वो होल नंबर नहीं है, सो अल्टीमेटली ये पॉलीनोमियल नहीं है, राइट, यहाँ पे सॉरी ये भी पॉलीनोमियल नहीं है, होल नंबर नहीं है बच्चों, ओके, सो दिस वन इज आल्सो नॉट अ पॉलीनोमियल। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और ये कांस्टेंट है, सो दिस इज अ पॉलीनोमियल। और यहाँ पे जाओगे, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल बच्चों यूज हुए, यानी कि एक से ज्यादा वेरिएबल भी पॉलीनोमियल में पॉसिबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है और कांस्टेंट टर्म तो पावर ऑलवेज 0, ओके, सो ये भी हमारे पास क्या हुआ पॉलीनोमियल। क्लियर बच्चों? सो आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है कि आपका जो पॉलीनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है वो वेरिएबल की पावर होल नंबर है कि नहीं है। इफ योर वेरिएबल पावर है द होल नंबर, right, so it is a polynomial, otherwise not, so that means all the polynomials are, we can say it's algebraic expressions, but only some of the algebraic expressions may be polynomial if they follows the condition the variable power is a whole number, but before that variable must be required in a numerator, okay, so ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हम इस तरह से समझ पाएंगे। क्लियर बच्चों? अब हम डिस्कस करेंगे polynomial in one variable and polynomial in more than one variable. So जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जैसे हमने आगे भी एग्जांपल्स देखे थे, जैसे 3x + 1 ले रहा हूं, एक ही वेरिएबल इसमें यूज हुआ है, 5x² + 2x + 3 पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया, राइट, या 5x ले रहे हैं, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2y² + 3y + 6, इसमें वेरिएबल y यूज हुआ है। पॉलीनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल यूटिलाइज हो रहे हैं, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल 3x + 2y, दो वेरिएबल यूज हुए इसमें, 3x² y² + 2xy + 5, पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल, उससे ज्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, p² q² + 2pq z + z², इसमें तीन वेरिएबल यूटिलाइज हुए, राइट। सो वैसे हमारी जो पढ़ाई है वो वन वेरिएबल में ही हमें करनी है, बट एक से ज्यादा वेरिएबल में भी पॉलीनोमियल पॉसिबल है इस तरह से, ओके। चलो अब हम समझेंगे डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, इन सारे वर्ड्स को हम समझ लेते हैं। सो नाउ
ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे अगर मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, जैसे यहाँ के जो एग्जांपल है वही ले रहा हूं 3x + 1, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो व्हाट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? सो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन योर पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर यहां से हम इसको ध्यान से समझे तो x की पावर अभी यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है कांस्टेंट, तो x की पावर क्या हो गई बच्चों 0, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 1, तो डिग्री क्या हो गया 1। और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 5x² + 2x + 3। सो या और एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां से भी ले लेते हैं 3x² y² + 2xy। वैसे दो वेरिएबल में भी ज्यादा पढ़ाई कुछ करनी नहीं है, बट एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू हम समझ लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो डिग्री कितना है यहाँ पे, सो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, और यहाँ पे x का पावर 0, राइट। तो समझ सकते हैं कि हाईएस्ट पावर कितना है 2, सो डिग्री क्या होगा 2। यहाँ पे दो वेरिएबल होगा तब क्या करेंगे बच्चों, तो दोनों वेरिएबल की जो पावर है वो कंबाइंड काउंट करेंगे, जैसे एक टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, राइट। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल की कंबाइंड पावर, तो 2 + 2 कितना पावर हो गया 4, यहाँ पे 1 + 1, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो कंबाइंडली 1 + 1 यानी क्या हो गया 2, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यानी वेरिएबल की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया 4, तो डिग्री क्या हो गया। ओके, और इसके साथ और एक वर्ड आएगा लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, कोएफिशिएंट क्या होता है, तो ईच एंड एवरी टर्म में वेरिएबल के साथ में जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। बट लीडिंग कोएफिशिएंट आगे और एक वर्ड आ गया लीडिंग। लीडिंग क्या होता है, सो जिस टर्म से आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मिल रहा है उस टर्म की जो कोएफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड द लीडिंग कोएफिशिएंट। जैसे इस हर एक एग्जांपल में अगर हम लीडिंग कोएफिशिएंट को डिस्कस करना चाहें तो यहाँ पे डिग्री 1 कहां से मिली, इस टर्म से, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हुआ 3, सो दैट मींस लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो गया इसके लिए 3। यहां पे आएंगे डिग्री क्या है 2, डिग्री 2 कौन से टर्म में 5x², राइट, तो पावर कितना है यहाँ पे 2, उसका कोएफिशिएंट क्या हुआ 5, दैट इज कॉल्ड द लीडिंग कोएफिशिएंट। यहां पे देखेंगे तो डिग्री 4 कौन से टर्म से मिला, सो 3x² y² से, तो उसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज व्हाट 3, दैट इज कॉल्ड द लीडिंग कोएफिशिएंट, राइट। और टर्म्स भी हम इजीली समझ पाएंगे, यहाँ पे प्लस या माइनस से जो भी सेपरेट हो जाते हैं दे आर द टर्म्स, राइट। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए तो 3x + 1, तो 3x एक टर्म हो गया, प्लस के बाद 1 और एक टर्म हो गया, यानी दो टर्म्स है यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 तीन टर्म्स हो गए, यहाँ पे भी देखिए तो 1 2 3 दीज आर द टर्म्स। अंडरस्टूड बच्चों। चलो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड दीज ऑल द थिंग्स, ओके। चलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मेनली दो टाइप हम यहां पे क्लासिफाई कर पाएंगे, बाय डिग्री एंड बाय टर्म्स। बाय डिग्री अगर हम समझे बच्चों तो डिग्री 0, डिग्री 1 ले लेते हैं, डिग्री 2 भी ले लेते हैं एंड डिग्री 3। डिग्री 4 भी पॉसिबल है, बट according to our syllabus we didn't require degree 4, but that we will discuss it what it is. By the terms, one term,
2 terms and the 3 terms. ओके, चलो डिग्री 1 यानी कि इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, डिग्री 1 दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री 2 यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. and degree 3 that is the cubic polynomial. ओके, जैसे कुछ एग्जांपल्स भी बच्चों समझते हो, राइट. जैसे डिग्री 0 तो कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 3, 5, राइट. इवन 0 भी हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, बट इसकी एक डिफरेंट कैटेगरी, उसको भी हम समझते हैं, राइट. तो 0 भी मैं एग्जांपल कंसीडर नहीं कर रहा हूं. -4 दीज आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ओके, फिर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए तो डिग्री 1 वाले कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप. जैसे मैं 3x ले सकता हूं, 3x + 2 भी ले सकता हूं. ये सारे एग्जांपल्स हुए इसके. यहां पे देख सकते हो तो है x के हाईएस्ट पावर 1 है, यहां पे भी x के हाईएस्ट पावर 1 ही है. ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास डिग्री 2 यानी कि ऐसा अगर एग्जांपल एक ले ले तो 3x² + 2x + 5. सी बच्चों, हमारा सिलेबस 1 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इसके लिए हम एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं अभी, राइट. तो डिग्री क्या है यहाँ पे 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया. क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल ले लेते हैं. 3x³ + 5x² + 7x + 3. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल x की? 3, तो डिग्री 3 हो गया. दीज आर द सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द डिग्री. चलो 1 टर्म, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, राइट. अगर 1 टर्म है आपके पास, दैट इज कॉल्ड द मोनोमियल. उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोमियल. 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल. ठीक है, चलो उसके कुछ एग्जांपल्स भी ले लें. सिंपल मोनोमियल यानी एक ही टर्म. अगर मैं 3x ले रहा हूं, वो भी एक इसका एक एग्जांपल हो गया. अगर मैं 5 ले रहा हूं तो भी एक मोनोमियल एक ही टर्म हो गया. दीज आर द एग्जांपल्स. बाइनोमियल 2 टर्म्स, मैं 3x + 5 ले लूं, 2 टर्म्स आ गए बच्चों. ओके, या फिर मैं x - 2 ले लूं, वो भी एक एग्जांपल हो गया इसका, 2 टर्म्स हो गए. प्लस माइनस से सेपरेट होंगे टर्म्स. ओके, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स ले लेते हैं, तो 3x² + 2x + 5, ये भी एक एग्जांपल हो गया. ठीक है, सो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर पाएंगे बाय डिग्री एंड बाय द टर्म्स. बाय डिग्री 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. 0 डिग्री दैट मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल. डिग्री 1 यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री 2 यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. डिग्री 3 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल. और एक बात, डिग्री 4 है जो हमारे सिलेबस में स्टडी नहीं करना है, बट समझ लीजिए कि अगर डिग्री 4 है तो दैट मींस कॉल्ड द बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यानी यहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 4. दैट इज कॉल्ड द बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाय द टर्म्स अगर बात करें तो 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल. इस तरह से हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर पाएंगे. अभी थोड़ा सा स्पेशल केस हम डिस्कस करेंगे इन द केस ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो फॉर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 2 चीजें आएगी, 2 पॉइंट्स बच्चों हम ध्यान रखेंगे. एक आएगा, या फिर इसको ऐसे ले लो. पहला पॉइंट अगर याद रखोगे आप, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0. बट अगर आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 है, सो दैट इज द जीरो पॉलिनोमियल. ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या? 0. दैट इज कॉल्ड द स्पेशल वर्ड. व्हाट द स्पेशल नेम? इट्स अ जीरो पॉलिनोमियल. और जीरो पॉलिनोमियल के लिए डिग्री अगर बात कर रहे हैं, सो दैट इज द नॉट डिफाइंड. ओके,
सो जीरो पोलिनोमियल कब पॉसिबल, तो जीरो दैट इज अ जीरो पोलिनोमियल, या फिर पोलिनोमियल के सारे टर्म्स जो भी है उन सबकी कोएफिशिएंट जीरो हो जाते हैं, दैट इज आल्सो जीरो पोलिनोमियल। सो जीरो पोलिनोमियल को एक अलग केस में हम डिस्कस करेंगे बच्चों, राइट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और ये हाई स्टैंडर्ड में ज्यादा यूटिलाइज होगा, तो यहाँ पे इसके लिए ज्यादा कुछ हमें डिस्कशन नहीं करना है, बट यू मस्ट बी नो व्हाट इज अ जीरो पोलिनोमियल। So zero that is the constant polynomial, but that is a special word, that is a zero polynomial, और उसकी डिग्री that is not defined. Okay? चलिए, हो गया बच्चों। अब हम अपने पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। सपोज में पोलिनोमियल, सबसे पहले तो पोलिनोमियल को हम अलग अलग लेबलिंग भी कर पाएंगे। जैसे अगर पोलिनोमियल इन वेरिएबल x हुआ तो हम उसको p ऑफ x लिख पाएंगे। कुछ एग्जांपल अगर लिख लेते हैं हम, सो p ऑफ x मैं लिख रहा हूं x² प्लस 3x प्लस 2। इसमें वेरिएबल x है तो हम इसको पोलिनोमियल इन वेरिएबल x p ऑफ x, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो q ऑफ x x² प्लस 3x प्लस 2, राइट, r ऑफ x, ऐसे डिफरेंट सिंबल, या मैं वेरिएबल y ले लूं तो y² प्लस 2y प्लस 1। अगर एक ही वेरिएबल में तो उसको आप इस तरह से सिंबॉलिकली लिख पाएंगे। तो इस तरह से मैं पोलिनोमियल इन वेरिएबल x का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। x द पावर n उसकी कोएफिशिएंट an, x द पावर n minus 1 उसकी कोएफिशिएंट दैट इज द an minus 1, फिर an minus 2 एक कोएफिशिएंट हुआ, x द पावर n minus 2, सो ऑन ही चलता जाएगा, राइट। फिर मैं लिख रहा हूं लास्ट में a2 x द पावर 2, a1 x द पावर 1 एंड कांस्टेंट टर्म a0, राइट। तो आप देख सकते हो a हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है पोलिनोमियल का, राइट ना, पावर n minus 1 n minus 2, यानी आप देख सकते हो धीरे धीरे पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सबसे लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म आ गया, a0 a1 a2 अप टू an, वो सब क्या है आपके कोएफिशिएंट्स है, राइट, जिसको हम कांस्टेंट्स भी बोलते हैं, राइट। सो ये सारे कोएफिशिएंट्स है a0 a1 a2 अप टू a3, यानी कि आपके पोलिनोमियल के जो भी टर्म्स है इनकी वेरिएबल की पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप जब इसको अरेंज करेंगे दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ वो भी एक चीज समझेंगे कि हम इसका कुछ स्पेसिफिक पोलिनोमियल है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम यूटिलाइज करते हैं, कुछ कंडीशंस भी जरूरी है। तो okay, now the general form of the polynomial. Okay, now general form of the polynomial. Now general form of a polynomial. Now general form of a polynomial. So सबसे पहले तो हम लीनियर पोलिनोमियल के लिए डिस्कस करेंगे। सो लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखना चाहे तो ax प्लस b, वहां पे x की कोएफिशिएंट दैट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x की कोएफिशिएंट 0 हो गया तो हमारे पास बचेगा b, और वो एक कांस्टेंट है तो फिर वो लीनियर नहीं रहेगा, दैट इज द कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इसके लिए इसको में एक कंडीशन जरूरी है, ओके। उसके बाद लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका हम जनरल फॉर्म लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे कंडीशन चाहिए, देखो बच्चे क्वाड्रेटिक क्यों है, बिकॉज इसका डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है उस टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो a नॉट इक्वल टू 0 वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जरूरी कंडीशन रहेगी।
और हम लिखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, उसका एक फॉर्म अगर लिख रहे हैं हम तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d फॉर एग्जांपल। ओके, ये हम जनरल फॉर्म इस तरह से लिख पाएंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है? बिकॉज डिग्री 3 है तो उसकी कोएफिशिएंट भी यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सो ये कुछ बेसिक्स है जो बच्चों में ध्यान रखने पॉलिनोमियल्स के रिस्पेक्ट में।